Hi everyone. So today we will talk about Harshita's journey. So Harshita did her BTech in Biosciences and Bioengineering from IIT Kanpur, which is a non-technical branch. I mean, it is technical, but not a software branch. And today we wanted to discuss with her about how she got into software engineering, how she got into product management. Right at Cogno, she looks at technology and product teams. So she also had a technical internship offer at KR24 back in the college days, where she worked on Python and Django-based backend system. Right. So coming from biosciences background, it might have been challenging for you to pick up the concepts of programming and software. So we want you to share your journey. Right. So let's start with the first question. How did you get into software and programming in the first place? When did the idea came that? When did the idea come that let me not do biosciences, let me build a career in software domain, computer science and programming? Okay, so for a background, so my parents they have business in biofertilizers, right? Okay. So when I went into college, है ना, so मेरे दिमाग में था कि I'll go into biotech domain only. So first year of college जो था for both the semesters, first and second semester, common courses होते थे across all the departments, right? So I was like कि ठीक है अभी second year onwards anyway department specific courses चालू होंगे है ना, तो तब करेंगे मतलब proper bio sciences की पढ़ाई. ठीक है. सो फर्स्ट ईयर वॉज नॉर्मल. सेकेंड ईयर जब आए तो जब एक्चुअली डिपार्टमेंट के कोर्सेज आए तो दे वर इंटरेस्टिंग, बट साथ में लैब कोर्सेज भी आए. ठीक है. सो लैब कोर्सेज में क्या था कि लाइक फॉर सेवरल आवर्स यू हैव टू डू लाइक सेवरल एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, जो बायोलॉजिकल लाइक बायोलॉजी बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स वगैरह. तो जब वो मैं कर रही थी तो इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस कि हाँ मैं इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ लैब में. एंड देन आई रियलाइज कि प्रोबेबली दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, बिकॉज उसमें बहुत पेशेंस चाहिए होता है. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यू हैव टू डू द सेम एक्सपेरिमेंट ओवर एंड ओवर अगेन. ठीक है, विदाउट एनी चेंज इन द प्रोसेस, है ना. एंड बिकॉज सम टाइम पता चला एक छोटा सा एरर हो गया इन द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट एंड देन यू हैव टू डू, तो मतलब काफ़ी पेशेंस चाहिए होता है. मुझ में उतना पेशेंस था नहीं, तो आई रियलाइज दैट एट दैट टाइम. सो ये चीज़ था. फिर देन आई जस्ट ड्रॉप द आइडिया ऑफ लाइक रिसर्च एंड हायर स्टडीज़ इन बायो साइंसेज. सो नाउ आई हैड लाइक टू ऑप्शंस. उस टाइम मेरे दिमाग में दो ऑप्शंस थे. एक है कि मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ करके सॉफ्टवेयर में करियर बनाऊं. ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज आती थी प्लेसमेंट्स में ऑफ कोडिंग. सेकेंड वॉज कि मैं मतलब नहीं इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ूँ. ठीक है, फाइनेंस कंसल्टिंग वगैरह डोमेन में जाऊँ. ठीक है, दिस वॉज सेकेंड ऑप्शन. सो मैंने क्या किया, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स मैंने दोनों के कोर्सेज किए. मैंने CS के भी कोर्सेज किए, मैंने इकोनॉमिक्स के भी कोर्सेज किए, ओवर एंड अबव माय डिपार्टमेंट कोर्सेज. ठीक है, जब मैंने दोनों कोर्सेज किए तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है. देन आई वॉज लाइक कि ठीक है मुझे सॉफ्टवेयर में ही जाना है. तो फिर मैंने CS के और ज़्यादा कोर्सेज करने लग गए. एंड देन आई डिड द बेसिक करिकुलम ऑफ एनी CS ग्रेड वाइल इन कॉलेज इटसेल्फ. सो इन सेकेंड ईयर आई डिसाइडेड कि हाँ इसमें जाना है कोडिंग लाइन में. I think that is one flexibility IITs offer. Here, anybody, I don't know about other colleges, but IIT Bombay, IIT Kanpur में at least ये बहुत अच्छी flexibility रहती है कि you are not tied to a branch. Yep. You can take up courses in, like I wanted to take courses in aerospace engineering, which I did not take. My mentor said कि don't take it, not so interesting. But I did take some courses in statistics, entrepreneurship and stuff like that. So that is one good part, and I think more colleges, if not already done, they should implement it at their end as well. So that was helpful. Now talk about what resources did you use to learn programming? चालू कहाँ से किया, कौन से courses लिए, कौन सी books पढ़ी, कौन से online practice platforms में coding platforms में practice करी and so on and so forth. Can you talk about that? Yes. So first year में so in I think first या second semester there was this course of fundamentals of computing. ठीक है, वो सबके लिए common course था all the departments. Okay. तो उस time में मैंने थोड़ा coding किया था, like that was like basics of array and stuff. After that second year onwards मैंने decided कि अब मुझे core coding में जाना है. Then the first thing that you have to do is DS algo. ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का कोर्स. ठीक है, सो वो मैंने जब कोर्स किया है ना, तो उसमें काफ़ी अलग अलग मतलब जैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी एल्गोरिथम्स एंड स्टफ, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं. तो उसमें ऑफ कोर्स सो आई यूज डिफरेंट बुक्स लाइक कॉर्मन, तो मतलब इज़ द बुक जो कि बाइबल बोली जाती है फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स, तो वो तो पढ़ा ही था. अपार्ट फ्रॉम दैट आई रेड अदर बुक्स ऑल्सो, लाइक देयर वाज दिस क्लाइनबर्ग डार्डोस. ठीक है, उनकी एक बुक है एल्गोरिथम्स पे, है ना. उसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग वगैरह बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है. ठीक है, वैसे ही देयर वाज वन ऑनलाइन कोर्स आल्सो आई डिड, वो रॉबर्ट सेडविक का है ना, कोर्सेरा पे है. एल्गोरिथम्स की उनकी बुक भी है, दैट रेड कलर का. Correct. I think that course is in Java. That's in Java, but they explains like some concepts very
नाइसली, मुझे याद है वो Right. क्विक सॉर्ट वगैरह उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था, उनकी वीडियोस काफ़ी अच्छी थी Right. उसमें। इस टाइप के मैंने ऑनलाइन कोर्सेज किए, बट what problem that happens for anybody who is learning data structures and algorithms is कि ना काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसको कोड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। Okay. तो एंड दैट इज़ वेयर मेनी पीपल गिव अप, है ना, क्योंकि वो इतना डिफिकल्ट हो जाता है। फिर लोग बोलते हैं कि यार मेरा कोर्स निकल जाए, ठीक है, मेरा ग्रेड आ जाए, अब मैं आगे कुछ करूँगा, बट वो बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ हो जाती है। बट दैट इज़ द मॉन्स्टर दैट यू हैव टू बीट। सो इन दैट केस व्हाट आई डिड वाज, सो देयर इज दिस spoj.com की वेबसाइट, स्पीयर ऑनलाइन जज, SPOJ. यस, Right. है ना, वो है। उसमें आई फिगर्ड आउट कि अगर मैं इसको सॉल्व, मतलब नहीं, द नंबर ऑफ यूजर्स हु हैव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम्स के Right. हिसाब से Right. डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूं एंड 100 क्वेश्चंस टॉप कर लूं, Right. ठीक है, सो मतलब काफी सही रहेगा, Sufficient. ठीक है। एंड दिस आइडिया एक्चुअली, मतलब वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन कॉलेज, Correct. राइट, है ना। तो वो चीज़ आई डिड, ठीक है। 100 क्वेश्चंस किए, बहुत मुश्किल था, है ना, मतलब अब वो कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, है ना, आंसर पूछ करके कर रहे हैं, कुछ करके कर रहे हैं, हिंट्स देके कर रहे हैं, बट कर लो, Right. ठीक है। वो 100 सवाल किए ना, उसके बाद में मजा आने लग जाता है, Right. है ना। उन 100 सवाल के पहले तक आपको बहुत, मतलब यू आर लाइक कि क्या चल रही जिंदगी, मुझे कुछ आ नहीं रहा, मैं बेवकूफ़ हूँ वगैरह, बट वो 100 सवाल कर लिए, कैसे भी करके कर लिए, तो फिर मतलब तब मज़ा आता है। तो आई थिंक दिस इज समथिंग विच आई वुड लाइक रिकमेंड एवरीबडी, है ना, हु इज़ विलिंग टू लाइक लर्न कोडिंग। ये चीज़ थी, ठीक है। फिर डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स वगैरह हो गया। देन आई डिड अदर कोर्सेज ऑल्सो, लाइक मशीन लर्निंग का भी कोर्स किया था कॉलेज में। आई ऑल्सो डिड क्रिप्टोग्राफी का कोर्स, ठीक है ना, इस टाइप से ऐसे और भी कोर्सेज किए थे। एंड बिकॉज ये तो मैंने कॉलेज के कोर्सेज किए थे, ठीक है, क्रेडिट्स वाले, है ना, बट कई बार क्या होता है, बिकॉज ऑफ सम लाइक नहीं कोर्सेज होते हैं जो आप नहीं ऑप्ट कर पाते हो कॉलेज में, बिकॉज Right. हाँ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या कुछ हो रहा है। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन भी करी, ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑनलाइन किया था, मतलब तुम्हारा दिस डेटा बेसिस ऑनलाइन किया था, Okay. है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम्स का बहुत अच्छा कोर्स एक था, उस पर यूडासिटी पे हम लोग के टाइम पे था, आई थिंक Right. इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स, देयर इज अ फीमेल प्रोफेसर इन दैट, Okay. एंड वो काफ़ी अच्छा कोर्स था, ठीक है। एंड लाइक देन देयर इज अ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वो Right. कोर्स होता है, वो Architecture. आर्किटेक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दिस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, है ना। तो ये सारे कोर्सेज किए थे। सो आई डिड इन ऑर्डर ऑफ लाइक हाउ इन अ टिपिकल CS करिकुलम इट हैपेंस, ठीक है। Okay. डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स साथ में चल रहा है। Okay. फिर उसके बाद में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर आ रहा है, Okay. ठीक है। उसके बाद में फिर आप डेटा बेसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह कर रहे हो, है ना। ML आप कहीं पे भी कर सकते हो, क्योंकि वो मतलब से थोड़ा सा अलग जाता है, Right. बट हाँ ML आप तब करो जब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ चुके हो, Right. ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स सेकेंड ईयर And में, linear algebra. एंड लीनियर अलजेब्रा, And differential calculus. यस, लीनियर अलजेब्रा एंड डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट ईयर में पढ़ा देते हैं, Correct. तो correct. वो सबका कॉमन होता है। बट स्टैटिस्टिक्स सेकेंड ईयर में पढ़नी होती है, आई थिंक वो हमारे में वो भी कॉमन था, सो दैट वाज फाइन। एंड देन लाइक आई थिंक इन थर्ड ईयर और सो आई डिड ML, इस टाइप से करके कोर्सेज किए अलग अलग। तो दैट इज हाउ आई, So basically, some set of courses you did in college itself. Yeah. Some other set of courses you did from online platforms like Udacity, like Coursera, other platforms. And so ये learning material, one was courses and second thing you mentioned about Spoj. Yeah. उसके अलावा और क्या? स्पॉज था, ठीक है। इसके अलावा यस, सो वन मोर थिंग वाज देयर, जब इंटर्नशिप्स की बात आती है, राइट, बिकॉज यू ऑल्सो हैव टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स, है ना। अब आपने, ठीक है, ये सब थ्योरी वगैरह पढ़ लिया, अच्छी बात है, ठीक है। इफ़ यू हैव मेड सम प्रोजेक्ट्स, है ना, Okay. सो दैट ऑलवेज हेल्प्स। तो इसके अलावा व्हाट आई डिड वाज, देयर वाज दिस JangoGirls.com का ट्यूटोरियल, ठीक है ना। इट वाज एन एक्सीलेंट ट्यूटोरियल ऑन Django, ठीक है। वो क्या करते हैं, उस ट्यूटोरियल में ही आपसे एक ब्लॉग की एप्लीकेशन बनवाता है, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ द ट्यूटोरियल यू हैव अ वर्किंग एप्लीकेशन, है ना, विच यू कैन शोकेस एज अ प्रोजेक्ट। Right. वो मैंने किया था, ठीक है। सो दिस So वाज, for the knowledge of the audience, Django is a Python-based web development framework. Using Django, you can build web applications. So very large and scalable websites. I don't know what is the current architecture, but back in my time, I read that YouTube, Instagram, SurveyMonkey, Yeah. these kind of websites are built with Django as the backend. They may have evolved now; technologies have changed. But at Cogno also, our products are built in the Django-based technology stack, backend stack. So yeah, okay. तो Django was one thing. So basically for all the viewers of this video, so I would recommend कि अगर आप कॉलेज में हो, है ना, and if you are like looking to apply for internship, Django, मतलब Django ठीक है, ये एक फ्रेमवर्क है, आप कुछ भी और भी सीख सकते हो, आप जावा का कुछ कर लो, anything is Node.js. fine.
हाँ Node.js कुछ भी कर लो, एक वेब डेवलपमेंट का कोई फ्रेमवर्क सीख लो, है ना. एंड देन आई ऑल्सो हैड मेड सम प्रोजेक्ट्स इन एंड्रॉइड, मतलब बहुत बेसिक वंस लाइक दिस आई डिड लाइक वो से मैंने कोर्स किया था, मैं उसको आगे ज़्यादा परसू नहीं किया था. Udacity पे उसका भी कोर्स था अच्छा हमारे टाइम पे, है ना. तो येस दीज आर द थिंग्स दैट आई डिड आउटसाइड ऑफ स्पॉज. Okay. यस. So to structure it for the readers, let's go one by one. College courses क्या क्या थे? Database, data structures and algorithms. हाँ, I'll just repeat it. Yeah. एक बार structure कर दो, so that जो ठीक है. तुमने बोला है बहुत. Yeah. You mentioned a lot of things, right? Audience के लिए it becomes easy to note it down. Yeah. So okay. So when you are starting with coding, ठीक है, Yes. है ना, you have to learn. ठीक है, सबसे पहले एक कोर्स आता है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटिंग. CS 101 type CS का. 101, Yeah. CS 101, ठीक है, आपको बेसिक आ जाता है. हमारे टाइम में C में हम And लोग ये को सिखाया सभी था. colleges में होता है. सब Every colleges department, every college. Yes, है ना, एवरी. हाँ, तो ये तो होता है, इसमें आप बेसिक सारे वगैरह सीख जाते हो. ठीक है, उसके बाद में कम्स डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स. Okay. ठीक है ना, ये आप पढ़ लेते हो. ठीक है, देन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर. Okay. ठीक है, एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. Okay. ये तीन चीज़ आप साथ में भी कर सकते हो. अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो, डीएस एल्गो, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम एक साथ कर लो विद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. उसके बाद में आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर Got आ it, जाओ. got ठीक है, इसके बाद में यू कम टू डेटाबेसेस, है Okay. ना, ऑपरेटिंग सिस्टम्स. ठीक है, ये कोर्सेज हो जाते हैं. यू कैन देन स्टार्ट डूइंग ML AI वगैरह के कोर्सेज इफ यू वांट टू. Cryptography. क्रिप्टोग्राफी, ये सब चीज़ें, है ना, ये इसके बाद में आ सकते हैं. बट बेसिक एटलीस्ट कंप्यूटर स्ट्रक्चर, वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर तक के कोर्सेज तो करे ही होने चाहिए सबको, जस्ट टू बी एबल टू अंडरस्टैंड बेसिक्स हाउ कंप्यूटर वर्क्स, राइट. तो दिस इज द आइडिया. एंड स्पॉज एंड ऑल कैन बी डन पैरेलल टू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की लर्निंग. Right. And Spoj में first 100 questions sorted in the order of number of people who have solved. यस, डिसेंडिंग ऑर्डर. Yes. आप Of course. आप शुरू करते हो लाइफ, यूनिवर्स एंड एवरीथिंग से. Correct. ठीक है, जिसका आंसर 42 आता है ना. बट फिर वहाँ से मतलब दैट इज अ लाइक बेसिक थिंग. बट वो भी क्वेश्चन सिखाया जाता है एक चीज़ के, कैसे आप मतलब नहीं रियल टाइम स्ट्रीम करो नंबर्स, मतलब व्हेन यू सॉल्व दैट यू रियलाइज. सो वो चीज़ है. बट 100 क्वेश्चंस कर लिए तो कोडिंग आ गई करना. कोड आप कुछ भी कर लोगे, अगर आपके दिमाग में सोल्यूशन चमकता है ना, आप कोड कुछ भी कर लोगे. ये कॉन्फिडेंस आ जाता है. Right. So these days technologies like ML AI are very popular in the market. ChatGPT is viral on Twitter. At least in my Twitter feed, it is all full of ChatGPT. Many students try to learn these technologies in the first year of college. What are your thoughts on that? ओके, सो ये गलती मैंने भी करी थी एक्चुअली. सो व्हाट हैपेंड वाज कि फर्स्ट ईयर में, ठीक है, जब आई थिंक हमारा बस फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटिंग का ही कोर्स हुआ था, जस्ट Okay. दैट्स इट, है ना. एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, एक कोई वर्कशॉप हो रही है कॉलेज में एंड्रॉइड की, चलो वो कर लेते हैं, है ना, मज़ा आएगा वगैरह. तो चले गए वहाँ पे करने के लिए. फिर वहाँ पे एंड्रॉइड की वर्कशॉप थी, कुछ बिल्कुल नहीं समझ में आया Okay. कि क्या था. ठीक है, मतलब एंड्रॉइड, आप पहली बात तो आप वो उसमें जावा में आप कोड कर रहे हो, Right. ठीक है, वो आती नहीं थी, है ना, Okay. क्योंकि मैंने फंडामेंटल्स कंप्यूटिंग C में किया था. एंड आप एक कोर्स कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है दैट यू आर वेरी हैंड्स ऑन, यार कोई भी नई लैंग्वेज आई हो गया जाएंगे, सीख कर जाएंगे, लेंगे. वो सब नहीं था. उसमें इतनी सारी फाइल्स थी, ठीक है, XML अलग, जावा, मतलब सो इट वाज लाइक वेरी कंफ्यूजिंग. एंड आई वाज लाइक यार क्या चल रहा है, ठीक है. तो फर्स्ट ईयर में वो किया था. एंड देन आई रियलाइज कि भाई स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा, ऐसे छलांग मारेंगे तो कुछ नहीं होगा, Right. है ना. सो अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं. आई हैव सीन लाइक स्टूडेंट्स इन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज ज्वाइन भी नहीं किया होता है, ML AI उनको पढ़नी होती है ना. सो दिस इज माई रिकमेंडेशन, स्टेप बाय स्टेप जाओ, है ना. तो आप बीच में गिव अप नहीं करोगे, Right. ठीक है. आप एकदम से छलांग मारोगे, वो ऊंचा माउंटेन दिखेगा, है ना, एंड आपको लगेगा कि यार क्या है, डिच कर दोगे. एंड आई हैव सीन पीपल गिविंग अप Right. इन बिटवीन, है ना. छोटे छोटे स्टेप्स लो, धीमे धीमे. 4 साल है पूरे, 4-5 साल डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स, है ना. काफ़ी टाइम है, छोटा छोटा करके करो, हो जाता है, मतलब. सो दैट इज माई रिकमेंडेशन ऑन दिस. Okay, great. So even I agree with that advice. I mean, I remember there was a meme in which there are stairs and यहाँ पे लिखा है data structures, यहाँ पे लिखा है operating system, यहाँ पे लिखा है machine learning, and a guy is jumping from 4 stairs climb कर रहा है, right? That's a meme which I sent to students who try to reach out to me कि भैया I'm learning machine learning and I'm in first year of college. What is your advice? My advice is learn to write code first. My advice is learn to write a program of 500 lines first, spread across maybe 2 or 3 files, and then get into machine learning, then get into Android development or web application development, because these are very complicated things. They are not so straightforward, and you end up wasting a lot of time in debugging your code because you don't understand the basics. So it is always better to learn the basics and go in a structured manner. I'm not saying कि college curriculum is perfect, professors are great and all of that. You can skip levels if you are smart,
but if you're not smart, then don't skip levels. Yes, yes. Right. Okay, great. So now let's talk about your internship, right? So you had an internship offer from a startup called LoanZen, and another one was Care24, where Care24 is where you ended up actually Yeah. doing your internship in Mumbai. Uh, both were off-campus internship offers, right? Not from campus. One was campus, one was off campus. Okay, LoanZen was off-campus and Care24 was via campus. Okay, great. Good to know that you had an off-campus offer. So let's come to Care24 later and LoanZen later. First, talk about what preparation did you do as a part of internship planning, right? Internship interviews and all. What skills did you learn? Where did you practice your data structures and competitive programming and stuff, which is pretty common in technical interviews? So, how did you do that? Talk about that, and then talk about your LoanZen internship, and then we'll come to Care24. So first, I want to know about the preparation. Okay. So preparation में so I was very clear कि मुझे coding related ही internship चाहिए because Okay. I wanted to build my resume that way, Mhm. है ना. So then what I did was कि of course I revised my curriculum that I had studied till then, है ना. Okay. I think I had studied till computer architecture वाला course, Okay. है ना. हाँ, मतलब ऐसा था. Discrete mathematics वगैरह हो चुका था मेरा पहले. So वो सब मैंने रिवाइज किया ऑब्वियसली, है ना. Okay. स्पॉज के क्वेश्चंस 100 मैं मतलब आई थिंक कर चुकी थी या कर रही थी, मतलब दैट आई कंप्लीटेड दैट बिट ऑफ इट. बट येस, वेब डेवलपमेंट जैंगो का जो मैंने अभी बताया था, राइट, है ना. तो ये मैंने इंटर्नशिप के पहले किया था. सो वेब डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट मेरे पास था विच वाज इन जैंगो, विच इज अ पाइथन फ्रेमवर्क एज यू मेंशन, है ना. उसका मेरे पास एक प्रोजेक्ट था. सो And that was using the Django Girls tutorial. Django Girls ट्यूटोरियल, Yes. है ना. तो Django Girls ट्यूटोरियल यूज करके वो एक एप्लीकेशन बनाया था, ठीक है. और भी छोटे मोटे मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए थे, है ना. बट ये जो मेन प्रोजेक्ट था, ये दिस ब्लॉग एप्लीकेशन दैट आई हैड मेड यूजिंग Django, दिस वाज द हाईलाइट. मतलब ये जो भी मैंने इंटरव्यूज दिए थे सब में इसके बारे में ही इसके पूछा बारे में, गया था, right. है ना. एंड ये ट्यूटोरियल इतना अच्छा था कि आपको डिटेल्स वगैरह सब पता होती हैं व्हेन यू Right. मेक इट, है ना. सो ये मेन चीज़ें करी थी. एंड बैक इन आर टाइम्स वो टेलीफोनिक इंटरव्यूज वगैरह होते थे, है ना. और कोडिंग टेस्ट वगैरह होते थे. सो दिस मच प्रिपरेशन वाज सफिशिएंट. Sufficient. Okay. या. And so LoanZen was off campus, which is Yeah. very interesting. How did you reach out to them? Which platform? AngelList, LinkedIn, social media? I don't know. How did you end up with that? And if you recall, how was your interview experience? Because it's been several years. I don't know if you remember, Yes. but whatever you can share. यस यस. तो आई थिंक शायद मैंने लोन्ज़न एंजल लिस्ट से अप्लाई किया था. Okay. आई एम नॉट 100% श्योर क्योंकि मैं मल्टीपल चीज़ें उस टाइम कर रही थी, Okay. है ना. एंजल लिस्ट से अप्लाई मतलब मे भी मैंने अप्लाई किया था, ठीक है. मैंने कहीं कहीं जगह पे डायरेक्ट ईमेल्स वगैरह डाले थे कुछ फाउंडर्स को. आई थिंक लोन्ज़न वाज थ्रू एंजल लिस्ट, Okay. है ना. एंड मेरा इंटरव्यू, हाँ, तो फर्स्ट राउंड वाज टेलीफोनिक, ठीक Okay. है. वो पूरा फ़ोन पे था, है ना. फिर उसके बाद में दे हैड डन अ प्रॉपर इंटरव्यू जिसमें कि मतलब नहीं कोडिंग, मतलब स्क्रीन शेयर्ड है, Okay. है ना. एंड यूर Pair कोडिंग, programming or पेयर whatever. प्रोग्रामिंग Yeah. टाइप का. हाँ. तो ये 2 राउंड से एज फार एज आई रिमेंबर. एंड हाँ, देयर वाज वन असाइनमेंट दैट दे गिव, सो दिस वाज इंटरेस्टिंग. सो दे हैड आस्क्ड मी टू राइट एन ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट, ठीक है. एमसीए की वेबसाइट से कुछ डेटा पुल करना था यूजिंग सेलेनियम. MCA, by the way, is Huh. Ministry of Corporate Affairs. It's a repository of all the companies. Yes, Like all in yes. call research and solutions, you can find the data on MCA website. Yes, तो उस वेबसाइट से आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर व्हाट दे आस्क्ड मी टू फेच, बट दे आस्क्ड मी टू फेच समथिंग, है ना. एंड वो उसमें वही आपको ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट लिखनी थी. तो एक सेलेनियम करके एक फ्रेमवर्क रहता है ना, फॉर Okay. ऑटोमेटेड टेस्टिंग. वो मैंने यूज़ किया था एंड आई डिड दैट असाइनमेंट सक्सेसफुली. उसके बाद में डिड द टेलीफोनिक इंटरव्यू वेयर देन आस्क्ड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के प्रॉब्लम. Okay. आई रिमेंबर कुछ ट्री का पूछा था, है ना. ऐसे ऐसे करके पूछा था. आई हैड टू एक्सप्लेन सम एल्गोरिथम्स एंड देन देयर वाज वन कोडिंग साथ में करने वाला, मतलब वेयर माय स्क्रीन वाज शेयर्ड. डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का ही था मेनली, है ना. उनके में उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे Django मेरा जो वो था रेज्यूमे देख करके दे आस्क्ड मी सम क्वेश्चंस, बट मेनली आई थिंक देयर वर्क वाज अराउंड ऑटोमेशन एंड ऑल. तो फिर उन्होंने वो असाइनमेंट बेस्ड उनका ज़्यादा चला था. सो दिस वाज अबाउट लोन्ज़न, ठीक है. नाउ इफ आई कम टू Care24, yes. वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको Django में इंटरेस्ट था बिकॉज उनकी पूरी एप्लीकेशन ही Django में Django बनी थी, okay. है ना. तो वहाँ पे मेरा काम ही वही था. सो दैट इज़ वेयर सो दे शॉर्ट लिस्टेड माई प्रोफाइल एंड ऑल बिकॉज आई हैड वर्कड ऑन Django. उन्होंने काफ़ी से सवाल पूछे. उनका एक कोडिंग टेस्ट था, है ना, जो कि वही DS Algo वाला ही कोडिंग टेस्ट था. एंड देन माई इंटरव्यू वॉज अ लॉट ऑन Django. Okay. I think this is very important for the audience to take a note of.
see, having courses is one thing, knowing data structures and algorithms, knowing discrete maths, and a bunch of other stuff is one thing. But if you do a small project in one tool, one framework, one whatever, one utility, one technology, it helps you stand out of others. So Yes. knowing Django helped you a lot at these companies. You can learn, let's say, Android app development, basics of machine learning, or even Node.js, for example. It's another backend framework. But having it is always advisable to have one such, I would say, standing out Yeah. technology on your resume, and have one project in that. That really helps. यस यस अरे क्योंकि मुझे जो इंटरव्यूअर जो मेरे थे ठीक है फ्रॉम K24 ही वाज लाइक कि मतलब आई इंस्टेंटली शॉर्टलिस्टेड योर प्रोफाइल बिकॉज आई सॉ द वर्ड जांगो है ना तो मतलब ये एक सही बात है कि अगर आप कोई एक पॉपुलर टेक्नोलॉजी में कुछ प्रोजेक्ट बना लेते हो Right. आपका रिज्यूमे एकदम से एटलीस्ट फॉर दोस कंपनीज बहुत रिलेवेंट हो जाता Attractive है हो जाता है, right. हाँ जो Agree. यूज करें वो टेक्नोलॉजी Agree. So, okay, so that was internship, and I hope you had a great time at the internship. Also, I remember you told you received some bonus यस यस for the great performance. So, can you Correct. talk about that? Yeah, so वही था so I had worked on several parts of their application ठीक है and so मतलब I was actually not expecting it ठीक है मुझे कई बार पता नहीं चल पाता है if a work has been done nicely or not है ना imposter syndrome and all but apparently they really liked my work because I had worked on their core application ठीक है Right. उसमें notification system वगैरह पे मैंने काम किया था है ना Okay. हाँ तो वो था एंड दैट वाज लाइक क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट और वो मतलब हो गया था ठीक है इन माय ड्यूरेशन व्हेन आई वाज देयर एंड वर्किंग ऑन इट सो दे गेव मी बोनस है ना देन आई रियलाइज ओके सो इट वाज अ नाइस इंटर्नशिप नाइस वर्क ठीक है सो या Yeah, I think more than money, it's the recognition of the work, Yes. appreciation of the work that matters. And I remember you told you closely work with the founders also Yes, of yes. KI24, so that is great. Yeah. Now let's talk about placements, right? What did you do during the placements? I remember you telling me that you had qualified for DirectEye interviews. So by the way, DirectEye during our time, I don't know how it is today, but during our time they used to be a very prestigious company. They had a very difficult coding test, and clearing their coding test was definitely considered a badge of honor among the friend circle. So talk about how you did in the coding test. What was the if you remember the questions, if you can share something around that, and then talk about the interview experience with DirectEye or with other companies. Citibank, you ended up a job offer. It was an on-campus offer. So talk about that. यस सो हाँ ये बात है हमारे टाइम पे बहुत डिफिकल्ट कोडिंग टेस्ट आया था डायरेक्ट आई का सो आई थिंक मतलब हमारा एंड द कोडिंग टेस्ट वाज ओपन फॉर एवरीबॉडी Every department. एवरी डिपार्टमेंट है ना सो अ लॉट ऑफ पीपल हैड अप्लाई मतलब हैड गिवन द टेस्ट 4 सवाल थे एक तो डायनामिक प्रोग्रामिंग का था ठीक है एक प्रिम्स एल्गोरिथम का था Okay. और 2 मुझे याद नहीं किसके थे ठीक है. fine. so ऐसा था एंड वो कोडिंग टेस्ट वाज लाइक वेरी डिफिकल्ट है ना आई थिंक इट वाज ऑफ 3 आवर्स या 2 आवर्स ठीक है एंड आई रिमेम्बर उसमें से 5 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे ठीक है 4 लोग सीएस के थे और एक मैं थी है ना और मैं बायो साइंसेस की थी four people from IIT Kanpur computer science, and then fifth person is like, yo, I'm from bioscience. यस है ना एंड हाँ तो मतलब बहुत ज्यादा एकदम से भौकाल बन गया था ठीक है क्योंकि मतलब एंड एवरीबॉडी वाज लाइक मतलब क्योंकि देखो क्या होता है ना आप प्रिपेयर कर रहे हो तो अपना साइलेंटली सब ठीक है बट जब ऐसे रिजल्ट्स आते हैं एंड देन व्हेन पीपल Agree. सी एंड दिस वाज लाइक क्वाइट अनएक्सपेक्टेड राइट बिकॉज 5 लोग इतने सारे लोगों में से शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं है ना वो भी चारों सीएस के हैं एंड एक मैं बायो साइंसेस की सो इट वाज लाइक वेरी मतलब यूनिक थिंग ठीक है Right. तो उस क्लास में काफी भौकाल बना ठीक है एंड लाइक पीपल लाइक यूज्ड टू आस्क कि उस क्लास में बहुत सारे टेस्ट हुए अलग अलग मतलब कंपनीज वगैरह के होते थे है ना सो इट वाज लाइक कि पीपल यूज्ड टू आस्क कि यार ठीक है तुम्हारा कितना स्कोर है तुम्हारा कितना स्कोर है और डिपार्टमेंट्स के लोग पूछ रहे हैं ठीक है ना एंड वो सब चीज़ें होती थी ठीक है एंड लाइक देयर वर like some of my batchmates ठीक है ना from CS only है ना who were like कि यार मतलब it was like very kind of inspiring for them also because they were like कि यार मतलब हम डिपार्टमेंट के हमारे तो यही कोर्सेज होते हैं यही सब कुछ होता है एंड तुम्हारा एक अलग ही डिपार्टमेंट है ना एंड स्टिल यू आर लाइक डूइंग सो मच है ना यू मस्ट बी लाइक वर्किंग डेफिनेटली सो हार्ड सो मतलब इट्स लाइक लर्निंग फॉर अस ऑल्सो कि यार ठीक है एक कोई इंसान ठीक है दूसरे
डिपार्टमेंट का वो कितना मचा सकता है वगैरह, तो वो सब चीज़ें थी, तो दैट मचा सकता है इज लाइक IIT लिंगो। या है ना, इतना अच्छा कर सकता है, तो वो सब चीज़ें थी, तो उससे ऑफ कोर्स मतलब सो आई वाज लाइक डेफिनेटली अमंग द गुड प्रोग्रामर्स, है ना, इन कॉलेज एट दैट टाइम। सो ये चीज़ थी, है ना, एंड ऑफ कोर्स लाइक जो मैंने लर्निंग रिसोर्सेज बताए थे इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस वीडियो, वो तो थे ही थे। प्लेसमेंट्स के लिए आई ऑल्सो हैड ट्राइड आउट इंटरव्यू बिट, है ना। सो इंटरव्यू बिट में हमारे टाइम में एटलीस्ट ऐसा रहता था कि वो अपनी पूरा एक रिवीजन के लिए अच्छा हो जाता था, है, टॉपिक बाय टॉपिक उनके सेक्शंस रहते थे, है ना, एंड आप उसके क्वेश्चंस लगाओ, फिर नेक्स्ट टॉपिक अनलॉक होगा, ऐसे करके हम एटलीस्ट एट माई टाइम इट यूज्ड टू बी लाइक दैट, है ना। सो वो मैंने किया था, दैट वाज आल्सो गुड रिसोर्स व्हिच आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, है ना। ये चीज थी, सो दीज वर द लाइक प्लेसमेंट, एंड प्लेसमेंट ऑफ कोर्स यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग व्हाट यू हैव स्टडीड सो फार, प्रोजेक्ट्स स्पेशली। आई डोंट एक्चुअली हैव माय रेज्यूमे राइट नाउ, मैं शायद कोई नेक्स्ट वीडियो में अपना रेज्यूमे ट्रांसफॉर्मेशन I have a copy, maybe I'll put it in the comment section for everybody, or in the description of the video to refer. I'll definitely share. I'll upload it on Google Drive and share. Yes, I'll probably make another video in which I'll talk about how my resume transformed, ठीक है। पहले का जो मेरा इनिशियल रेज्यूमे था वो बहुत ही मतलब कुछ नहीं था उसमें कुछ खास, एंड बट लेटर ऑन इट वाज लाइक क्वाइट नाइस। तो ये चीज़ें थी, है ना, एंड यस नाउ टॉकिंग अबाउट द प्लेसमेंट्स। हाँ, सो बेसिकली क्या था, फिर जब इंटरव्यूज़ के डेज आए, राइट, तो दिसंबर में, है ना, सो फर्स्ट डे अ लॉट ऑफ कंपनीज दैट केम इनटू द कैंपस, दे वर लाइक, जो कि CS एंड इलेक्ट्रिकल ओनली ओपन थी, है ना, एंड या कंसल्टिंग वगैरह की ज़्यादा थी, मतलब समहाउ द डिस्ट्रीब्यूशन वाज लाइक दैट, ठीक है। तो जो फर्स्ट डे की कंपनीज थी, आई थिंक आई वाज नॉट लाइक देयर, है ना, फॉर अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज ऑन द फर्स्ट डे, क्योंकि मैं जिन कंपनीज में मेरा शॉर्ट लिस्टिंग हुआ था वो बहुत ज़्यादा आई नहीं थी ऑन द फर्स्ट डे, ठीक है। एंड देन सेकेंड डे ऑनवर्ड, सो सेकेंड डे में आई थिंक द फर्स्ट हाफ के स्लॉट में शायद सिटी बैंक का आया था उस टाइम, है ना, एंड तो फिर मेरा तभी हो गया था तुरंत, तो इंटरव्यूज वगैरह हुए थे, एंड इट वाज लाइक डन, सो आई हैड एक्सेप्टेड द ऑफर एट दैट टाइम इटसेल्फ। So yeah, I mean you don't have an option either. At least in IIT Bombay it's the case if a company gives you an offer you have to accept it and you have to reject all others. You can't do anything. Correct. तो सेम इज एन IIT कानपुर, है ना, कि आपको हाँ ऑफर आ गया है तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक्चुअली जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था ज़्यादा, है ना, तो एंड सिटी बैंक का मतलब ऑफर वाज आल्सो क्वाइट गुड, एंड वो टेक्नोलॉजी डोमेन का ही था, सो आई वाज लाइक कि ठीक है, लेट्स नॉट मतलब डाइग्रेस मच, तो मैंने तभी वो एक्सेप्ट कर लिया था, एंड दैट इज हाउ, सो माय प्लेसमेंट्स वर डन लाइक क्वाइट अर्ली इन द प्लेसमेंट सीजन उस हिसाब से। नाइस। सो या ओके, सो lot of useful stuff of course. One last question I want to ask ki what advice do you have for the non-computer science student, people like yourself from biosciences, metallurgy, mechanical and other backgrounds who aspire to build a career in software and technology? Yes, so basically first thing is that I would say कि थोड़ा ना like जब भी आप चीज़ सीख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें होती है पढ़ने को, ठीक है, स्पेशली आप अपना डिपार्टमेंट का पढ़ रहे हो, एंड अगर ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी चीज़ें पढ़ रहे हो, अगर आप कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज एंड ऑल, तो स्ट्रक्चर्ड मैनर में थोड़ा जाना चाहिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। बिकॉज क्या होता है ना, अगर आप अनस्ट्रक्चर्ड जा रहे हो तो क्या होता है, आपको चीज़ें डिफिकल्ट लगेंगी ज़्यादा, है ना। एंड मतलब थिंक अबाउट इट ना, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ रहे हो बिफोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का कोर्स, तो आपको नहीं समझ में आएगा, आपको डिफिकल्ट लगेगा वो, है ना। तो अगर आपको पता है कि यार इस ऑर्डर में जाना चाहिए, आप उस ऑर्डर में जा रहे हो, तो चीज़ें मतलब रिलेटिवली ईजी हो जाएंगी। सेकेंड थिंग इज नेवर गिव अप, ठीक है। जो मैंने बताया 100 क्वेश्चन ऑन स्पॉज, ये एक्चुअली मतलब ये आई वुड टू से ये जो नहीं बाबा का मंत्र वाली चीज़ है ना, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आपको सीखना, आप कर लो वो चीज़, है ना। तो अब ये चीज़ है, इसमें आप गिव अप बहुत सारे लोग बीच में कर देंगे, बट आपको बस इन 100 सवालों में गिव अप नहीं करना है ना। अगर आप नहीं गिव अप कर रहे हो तो आगे की चीज़ें मतलब रिलेटिवली ईजी हो जाती हैं, है ना। एंड थर्ड थिंग आई वुड से इज कि एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स, है ना, क्योंकि क्या होता है मतलब एटलीस्ट दिस इज द मिस्टेक दैट आई थिंक आई मेड, ठीक है। मैंने कुछ चीज़ें मतलब उतनी ज़्यादा मुझे लगता है लाइक इफ आई थिंक बैक, ठीक है, आई वुड हैव मे बी एक्सप्लोर अदर थिंग्स लाइक ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है ना, या और भी चीज़ें, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना, आपको मतलब नए चीज़ें पता चलते हैं, मे बी आपको उस समय नहीं पता चलेगा कि उसका क्या यूज़फुल है चीज़, है ना, बट हो सकता है बाद में यू माइट रियलाइज कि हाँ यार उस टाइम पे ये चीज़ मैंने सीखी थी, अब ये कहीं पे अप्लाई हो रही है
है ना. तो exploring different things is important. Yeah, this is the main thing. I think great conversation, Harshita. So I hope many other students will get inspired by your journey and they learn from it. Uh, uh, for those who are watching this video, please connect with both of us on LinkedIn and Twitter. We are very active in both these platforms, and I'll put the links in the description below. Do subscribe to the channel. We'll be sharing more such videos about our journey, about jobs, about internships, about career, about entrepreneurships and stuff. And let's stay in touch. Thank you. Thank you.